Good morning, students. Brahmanath. Shanti, Shanti, Shanti. So stop. Today we are going to discuss a new chapter, that is increasing and decreasing function. Last class we discussed tangent and normal, what is the geometrical meaning of slope of the tangent and what is its equation and the problems of the tangent and normal. Today we will start what is increasing and decreasing function. So generally you know what we mean by increasing function. So increasing function means the function in which if the value of x increases, then the value of fx is also increases, then that function is known as increasing function. But if the value of x increases, the value of f of x decreases, then that is known as a decreasing function. तो increasing माने जो फंक्शन रे जो इंटरवल भितर x रो वैल्यूटा बढ़ी बढ़ी गले जदि fx रो वैल्यूटा बढ़ी बढ़ी जाउथो दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन. जदि x रो वैल्यूटा बढ़ी बढ़ी गले फंक्शन रो वैल्यूटा कमे कमे आसीबो ताको हम कहजे डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इंक्रीजिंग फंक्शन टू टाइप्स, वन इज इंक्रीजिंग स्टेटली इंक्रीजिंग एंड अदर इज इंक्रीजिंग फंक्शन. स्टेटली इंक्रीजिंग माने एक्स्ट्रा बढ़िले fx रो वैल्यूटा स्ट्रेट बढ़ुथो दैट इज स्टेटली इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग मीन्स x रो वैल्यूटा बढ़ी बढ़ी गले फंक्शन रो वैल्यूटा बढ़ुथबो और केते जगह रे इक्वल होथबो, either greater होथबो और इक्वल होथबो, then that is increasing function. Decreasing function means steadily decreasing means x रो वैल्यू बढ़ी बढ़ी गले फंक्शन रो स्ट्रेट कमिबो that is decreasing. ना नहीं एक्स्ट्रा बढ़ी बढ़ी गले फंक्शन रो वैल्यूटा कम होथबो बा समान थिबो केते जगह रे सेटा हम कहू जे डिक्रीजिंग फंक्शन. स्टेटली इंक्रीजिंग माने एक्स्ट्रा बढ़ले fx ता स्ट्रेट बढ़िबो. डिक्रीजिंग माने स्टेटली डिक्रीजिंग माने एक्स्ट्रा बढ़िले fx रो वैल्यू स्ट्रेट कमुथबो स्ट्रेट कमिबो दैट इज स्टेटली डिक्रीजिंग. आ खाली डिक्रीजिंग मींस एक्स्ट्रा बढ़ी गेले फंक्शन रो वैल्यूटा कमुथबो बा समान थिबो दैट इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन. देखो एक्चुअली आम डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन देबा. व्हाट इज स्टेटली इंक्रीजिंग? फर्स्ट वी राइट स्टेटली इंक्रीजिंग. स्टेटली इंक्रीजिंग, स्टेटली इंक्रीजिंग माने एक्स्ट्रा बढ़िले fx रो वैल्यू स्ट्रेट बढ़िबो दैट इज नोन एज स्टेटली इंक्रीजिंग. A function y is equal to f of x is said to be steadily increasing on open interval a comma b if x1 less than x2, then f of x1 is less than f of x2. If x1 less than x2, then f of x1 less than f of x2 for all x1 comma x2 belongs to in that open interval a comma b. देखो जदि x1 दा x2 सान हबो तबे f of x1 दा मध्य f of x2 सान रहइबो ना नहीं. तार तो एक्स्ट्रा बढ़ी बढ़ी जाइछि, एक्स्ट्रा बढ़ी बढ़ी गले फंक्शन रो वैल्यूटा स्ट्रेट बढ़ी बढ़ी जीवो दैट इज नोन एज
steadily increasing function. Or x1 greater than x2, then f of x1 greater than or f of x2. For all x1 comma x2 belongs to in that interval a comma b. जदि x रो वैल्यू कमी कमी जीवो फंक्शन रो वैल्यू मध्ये स्टेट कमी कमी जीवो दैट इज नोन एज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन. तो एडी एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी गला फंक्शन रो वैल्यू बड़ी बड़ी गला एडी x रो वैल्यू कमी कमी गला फंक्शन रो वैल्यू कमी कमी गला. This is known as steadily increasing function, and the graph of the steadily increasing function is like that. The graph of the steadily increasing function, clearly this is a steadily increasing function. The graph of the steadily increasing function, here the first point is x is equal to a, x is equal to a, and this is x is equal to b. Suppose the function defined in that interval a comma b. So we draw the graph of the increasing function, steadily increasing. Clearly this is a y is equal to f of x, be a function defined on open interval a comma b. This one is x o x dash, and this is y o y dash. In x axis we take the value of x, in y axis we take the value of f of x. Here in this curve the value of x is straightly increasing, ना नहीं एडी x रो वैल्यू बड़ी बड़ी जाईची काहेकि एडा होची पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देखा कि x रो वैल्यू बड़ी बड़ी जाईची. सपोज इफ वी टेक दिस पॉइंट इज x1, मन करे पॉइंट नेली x1, एडा होची तमरो x2, एडा होची तमरो x2. हेले x1 पाखरे फंक्शन ऑफ वैल्यू केता हो y इज इक्वल f ऑफ x. दिस इज कोन होची f ऑफ x1, एडा होची कोन f ऑफ x2. x1 डा x2 रु कोन होची x1 रो वैल्यू डा x2 रु कोन होची सान होची. हेले f ऑफ x1 रो वैल्यू डा भी f ऑफ x2 कोन होची सान. एडी कोन होची x1 डा लेस देन x2, x1 डा लेस देन x2 हेले f ऑफ x1 इज शुड बी लेस देन f ऑफ x2. x1 डा सान x2 डा बड़ो है ना नहीं. f ऑफ x1 डा f ऑफ x2 कोन होची सान होची ना नहीं. तार तो x रो वैल्यू बड़ी बड़ी गले f ऑफ x1 रो वैल्यू मध्ये बड़ी बड़ी जाईची. जदि इफ वी टेक 8 दीरा पॉइंट नबा हमें तो एटा को हम 8 नबा गोटे पॉइंट नबा x1, ए पॉइंट जदि x2 नबा सेम जगह x टा बड़ी बड़ी गले फंक्शन रो वैल्यू जदि बड़ी बड़ी जाउची दैट इज नोन एज स्टेडली इंक्रीजिंग फंक्शन. और नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. कौन इंक्रीजिंग फंक्शन? तो इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स a function y is equal to f of x, a function y is equal to f of x is said to be increasing on interval a comma b if x1 less than x2, then f of x1 less than or equal to f of x2. x1 less than x2 जदि x रो वैल्यू बड़ी बड़ी जाउची fx रो वैल्यू कोन होतो बडुतबो किंबा इक्वल होतो केते जगह रे, then that is known as increasing function. एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी गले फंक्शन रो वैल्यूटा बडुतबो किंबा इक्वल होतो किंतु कमिया चांस नाही ना. For all x1 comma x2 belongs to open interval a comma b. Similarly, if x1 greater than x2, then f of x1 greater than or equal to f of x2. जदि x रो वैल्यू कमी कमी जाउची fx रो वैल्यू मध्ये कमुतो नले समान होतो, that is known as increasing function. And the graph of the increasing function is like that. Here देखो एडोती फर्स्ट बढ़िला तापर एति सेम रहिला, then this is known as increasing function. एटा होत तमरो the graph of the increasing function. This is increasing. This is the graph of increasing function, and this is known as steadily decreasing function. The graph is here. This is the increasing function graph. Here x o x dash,
and this is y o y dash. ओके अच्छा कहीं ना देखो ये जो हमें x1 नेबा if we take this point is x1 and this is x2 and this is x2 एडु ते कोन होची x1 x2 टा x1 टा x2 सानो किंतु f of x1 टा f of x2 कोन इक्वल होची किंतु if we take एडु टे पॉइंट नेबा x1 जदि एडा को जदि हम x2 नै जीवा बोले x1 टा x2 सानो होची किंतु f of x1 टा f of x2 कोन होची सानो होची तो fx रो वैल्यू टा कोन होतो एक्स्ट्रा बॉडी बॉडी गले fx रो वैल्यू टा बढ़ुतबो किंबा इक्वल होतबो ताको हम कहूचे इंक्रीजिंग फंक्शन एई कोन होची एक्स्ट्रा बढ़िले fx रो वैल्यू स्ट्रेट बढ़ुची दैट इज नोन एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन बुझि पालो इंक्रीजिंग फंक्शन कोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कोन नेक्स्ट वी डिस्कस डिक्रीजिंग फंक्शन तो what is the strictly decreasing function? A function y is equal to f of x defined on interval a comma b defined on open interval a comma b is said to be decreasing if x1 less than x2 then f of x1 is greater than f of x2 or x1 greater than x2 then f of x1 less than f of x2 for all x1 comma x2 belongs to in that open interval a comma b तो what is the decreasing function strictly decreasing function एडी x रो बेला बड़ी बड़ी जाउची किंतु fx रो बेला कोन होची कमी कमी जाउची काहेकि x1 ला x2 सानो होची किंतु f of x1 ला f of x2 कोन होची बडो होची एक्स्ट्रा बढिले फंक्शन जदि कमीबो दैट इज नोन एज strictly decreasing बा एक्स्ट्रा कमिले फंक्शन जदि बढुतबो that is also decreasing function na inverse proportion and the graph of the decreasing function is like that this is the coordinate axis there are x o x dash and this is y o y dash the graph of the decreasing function is like that na kaingi एडा function हमर suppose x is equal to a point define कराइछि this is x is equal to a and this is x equal to b suppose if we take any 2 point in that interval this one is x1 and this is known as x2 and this is equal to f of x1 and this is equal to f of x2 अच्छा x1 ला कोन होची x2 रो कोन होची सानो होची किंतु f of x1 ला f of x2 कोन होची बडो होची एक्स्ट्रा बॉडी बॉडी जाउची किंतु फंक्शन रो वैल्यू ला कोन होची कमी 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 जाउची and this is known as a strictly decreasing function ओके और डिक्रीजिंग रे कोन होबो खाली डिक्रीजिंग फंक्शन रे डिक्रीजिंग फंक्शन तो डिक्रीजिंग फंक्शन रे कौन होगा इफ x1 less than x2 then f of x1 greater than or equal to f of x2 ना नहीं that is known as a decreasing function extra body गले फंक्शन वैल्यू टा कमी जाउथबो किंबा समान थिबो एक्स्ट्रा बॉडी गले फंक्शन वैल्यू टा कमुथबो बा समान थिबो दैट इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन और x1 greater than x2 then f of x1 less than or equal to f of x2 एडी कोन होची एक्स्ट्रा बॉडी जाउची किंतु फंक्शन रो वैल्यू टा कोन होची कम होची बा समान रहउची दैट इज नोन एज डिक्रीजिंग एडी एक्स्ट्रा कोन होची एक्स्ट्रा कमी जाईची एडी फंक्शन वैल्यू कोन होची बढ़ुची बा इक्वल रहउची that is known as also decreasing function and the graph of the decreasing function is like that देखो फर्स्ट एडु दी कमिला तापर कोन होची समान रहला तापर कमिला तापर सेम रहला and this is the known as decreasing function एडी एक्स्ट्रा कमी एडी एक्स्ट्रा वाला बॉडी रहउची किंतु फंक्शन वैल्यू कोन होची एडु कमिला तापर एडु सेम रहला किंतु कमिला हैला that is known as decreasing function एटा खाली डिक्रीजिंग फंक्शन एटा होची स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
तो steadily decreasing means if x1 less than x2 then f of x1 greater than f of x2, or x1 greater than x2 then f of x1 less than f of x2. এটা ইনভার্সাল প্রপোর্শন। এক্সট্রা বড়িলে ফংশনটা কমুচি, দ্যাট ইজ ডিক্রিজিং ফংশন, বা এক্সট্রা কমিলে ফংশনটা বড়ুচি, দ্যাট ইজ ডিক্রিজিং ফংশন, স্টেডলি ডিক্রিজিং ফংশন। খালি ডিক্রিজিং রে এক্সট্রা বড়িলে ফংশন ভ্যালুটা কমুথিব বা সমান রহুথিব, দ্যাট ইজ নোন এজ ডিক্রিজিং ফংশন। অর এক্সট্রা কমিলে এক্সট্রা কমি যাইছে এটি এফএক্স, এটি কোন এফএক্স এর ভ্যালুটা কোন হচ্ছে বড়ুচি বা ইকুয়াল হচ্ছে না নাই, দ্যাট ইজ নোন এজ ডিক্রিজিং ফংশন। ওকে, স্টেটলি ডিক্রিজিং মানে এক্সট্রা বড়িলে এফএক্স এর ভ্যালুটা স্ট্রেট কমুথিব, দ্যাট ইজ নোন এজ স্টেটলি ডিক্রিজিং ফংশন। ওকে, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन देखिल आउ डिक्रीजिंग फंक्शन कौन देखिल। बर्तमान हम देखिया बाय हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ कैन यू डिटरमाइन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। ना ग्राफ माध्यम रे फंक्शन दा कोड केति इंटरवल भितर फंक्शन दा इंक्रीजिंग हबो आउ कोड केति भितर डिक्रीजिंग हबो। नाउ वी सी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन by help of graph. You know the graph of the sin x, you know the graph of the sin x. So how can you determine the graph of the sin x? देखो y is equal to sin x. For sin x ग्राफ ड्रॉ करिया बोले आमे कोन लेबा पड़ियो, x एक्सिस रे x रो वैल्यू नेबा, y axis रे sin x रो वैल्यू नेबा। सो दिस इज इक्वल टू x o x dash and this is known as y o y dash। जेतो sin x ग्राफ रो ड्रॉ करिया, दिस इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तेनो x axis रे आमे एंगल नेबा, y axis रे sin x रो वैल्यू नेबा। वी नो द वैल्यू ऑफ sin x लाइज इन बिटवीन -1 to 1, तेनो एडा होची 1 ओनली एंड दिस इज इक्वल टू -1, एटा होची y dash, दिस इज -1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। कहीं ए भीतर रहिबो तमरो sin x रो वैल्यूटा आ x एक्सिस रे हम एंगल नेबा। सो दिस इज इक्वल टू π/2, दिस इज इक्वल टू π, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज नोन एज 2π। यू नो sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 2π इज 1, sin π इज 0, sin 3π/2 is -1 and sin 2π is equal to 0. So this is equal to the graph of the function is like that. Okay, this is the graph of the sin x. देखो in graph you can easily see that clearly the function is increasing up to 0 to π/2। देखो ए भीतर कौन होची, एति भीतर फंक्शन टा कौन होची इंक्रीज होची, एटो कौन होची इंक्रीज हैला स्ट्रेट 8 टू π/2 टू ए एति पर्यंत कौन होची पूरा कमी कमी आसला। सो 8 टू भीतर कौन होची, दिस इज डिक्रीज होची, डिक्रीज होची ना नहीं, देन 8 आउथरे कौन होची इंक्रीज होची, देन 8 टू 3 आउथरे भीतर इंक्रीज होची, स्ट्रेट इंक्रीज होची। सो इंक्रीजिंग हैला। So by the graph of this sin x we can say easily clearly sin x is increasing, steadily increasing on 0 to π/2, 0 to π/2 भीतर x रो वैल्यू बड़ी बड़ी जाची, ग्राफ रा मध्ये बड़ी बड़ी जाउची। आ π/2 to 3π/2 भीतर कोन होची, देखो एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी जाउची किंतु ग्राफिकली कोन होची वैल्यू कमी कमी जाउची, तापर एडी होची कोन बढुची। सो क्लियरली by help of a graph clearly sin x is increasing or steadily increasing। आमर बही रे increasing means steadily increasing are consider करछि। so increasing on x belongs to 0 to π/2, sin x is increasing on 0 to π/2, then 3π/2 to 2π, union 3π/2 to 2π जानी पारछ ना नहीं ग्राफ रे, and decreasing on x belongs to कोडे π/2 to 3π/2, π/2 to 3π/2।
So clearly the graph of the sin x is increasing on 0 to pi by 2 union 3 pi by 2 to 2 pi and decreasing pi by 2 to 3 pi by 2. अच्छा pi by 2 पाकर कौन होची this pi by 2 and 3 pi by 2 this is known as a turning point. Why it is turning point? Because at that point the graph changes from increases to decreases or decreases to increases. तेणु जो पॉइंट ग्राफ डा टर्निंग करथुओ चेंज करथुओ increases to decreases or decreases to increases, that is known as a turning point. तेणु pi by 2 3 pi by 2 this is known as a turning point. Okay, अच्छा if we draw y is equal to cos x, यदि हमें cos x ग्राफ चिंता करिया, you know the graph of the cos x. Similarly हमें x रो वैल्यू को ना नहीं एंगल लेबा आउ cos x रो वैल्यू y axis नेबा. Cos x the maximum value is also 1 and minimum value is -1. So this is equal to pi by 2 and this is pi and this is 3 pi by 2 and this is equal to 2 pi. You know cos 0 is equal to 1, cos pi by 2 is 0, cos pi is -1, cos 3 pi by 2 0, then cos 2 pi is 1, and the graph of the function is like that. Graph of the function is like that. Here pi by 2 is known as turning point. Pi is the turning point. कहीं ना 0 to देखो पहले 0 to pi भीतर ग्राफ टा कौन होची x रो वैल्यू बॉडी बढ़ जाईची किंतु ग्राफ टा कौन होची कमी कमी गला देन 8 होतरे बढ़िला. सो एती भीतर होची डिक्रीज एला डिक्रीज होला देन 8 होती कौन होची इंक्रीज होला. सो y is equal to cos x, y is cos x. So clearly cos x is decreasing on x belongs to 0 to pi. Pi is the turning point. Kaigi? Because at that point the graph changes, turn decreases to increases. 0 to pi and increasing on x belongs to pi to 2 pi, pi to 2 pi. बुझुछ ना दे ग्राफ माध्यम रे मध्य आमे गोटे फंक्शन डा कोड केति भितरे इंक्रीजिंग होउची आ कोड केति भितरे डिक्रीजिंग होउची. जदि आमे 0 to 2 pi भितरे चिंता करिया ना नहीं. सो ऑन जदि डिफाइन करा जे sin x टा डिफाइन कला 0 to 2 pi on 0 to 2 pi ए इंटरवल भितरे इंक्रीजिंग कोड होउची 0 to pi by 2 union 3 pi by 2 2 pi and decreasing pi by 2 to 3 pi by 2. Similarly cos x टा जदि आमे तार डोमेन नेबा 0 to 2 pi 0 to 2 pi भितरे जदि आमे चिंता करिबा 0 to 2 pi भितरे 0 to pi भितरे इंक्रीजिंग होउची देन pi to 2 pi भितरे इंक्रीजिंग होउची. आको मध्ये आमे एक्सटेंशन कले हबो किंतु ए इंटरवल भितरे आमे डिस्कशन कले 0 to 2 pi भितरे sin x टा कोड इंक्रीजिंग होउची डिक्रीजिंग होउची. 0 to 2 pi भितरे cos x टा कोड इंक्रीजिंग होउची डिक्रीजिंग होउची by help of graph. Okay, next so next we determine what is the condition for increasing and decreasing using dy by dx ना नहीं. तो dy by dx सहित increasing function रो लिंक कौन अछि और dy by dx सहित decreasing function रो कंडीशन कौन अछि बर्तमान आमे कंडीशन डा डिस्क्राइब करिवा. What is the condition for increasing and decreasing using dy by dx? तो increasing means आमे एटी बुझिबा steadily increasing, decreasing means steadily decreasing पाई बर्तमान आमे चिंता करिवा. What is the condition for steadily increasing using dy by dx? First देखिया steadily increasing for steadily increasing. The condition for steadily increasing, you know steadily increasing function means in that interval if the value of x increases then the value of fx is also increases. जो interval भितरे x रो वैल्यू बढ़ी बढ़ी गले function रो वैल्यू straight बढ़िबो, that is known as steadily increasing, and the graph of the steadily increasing is like that. The graph of the steadily increasing in this way
suppose x is equal to a initial point and this is x is equal to b point. The graph y is equal to f of x. Clearly this is a graph of the function y is equal to f of x defined on interval a comma b. So in that graph, the angle of inclination of a tangent at any point on that interval for this curve y is equal to f of x must be an acute angle. कौन मु कहली ना स्टेटिली इंक्रीजिंग फंक्शन नो ग्राफ रे ना नहीं से इंटरवल भितर जे कोनोसी गोटे पॉइंट रे तमे जदि टेंजेंट लाइन ड्रा करियो टेंजेंट लाइन रो इंक्लिनेशन कौन हबो मस्ट बी एक्यूट हबो से टेंजेंट लाइन रो इंक्लिनेशन दा एक्यूट एंगल हबो दैट मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री हबो. ओके देखो जदि हमें ए पॉइंट रे गोटे टेंजेंट लाइन ड्रा करिया जो ए इंटरवल भितर जो कोनोसी पॉइंट रे तुम टेंजेंट लाइन ड्रा करो. Suppose we draw the tangent line. So this is a tangent line PT. PT is the tangent to the curve y is equal to fx on interval a comma b, and this point is suppose x1 comma y1. The angle of inclination, that is theta, yet theta must be an acute angle. You know the angle of inclination, the angle of inclination the angle of inclination of a tangent at any point on interval a comma b must be acute. The angle of inclination of a tangent at any point on interval a comma b must be acute. A to b भितरे ए कर्व उपरे जे कोनोसी पॉइंट रे जदि हमें टेंजेंट लाइन ड्रा करिया से टेंजेंट लाइन रो इंक्लिनेशन दा से इंक्लिनेशन माने एंगल दा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मस्ट बी एक्यूट. थीटा रा सब कोन हबो एक्यूट हबो जो कोनोसी पॉइंट रे जदि टेंजेंट लाइन ड्रा करियो theta must be acute angle. So theta acute means theta less than 90 degree. So less than 90 means tan theta is greater than 0. ना नहीं theta ला जदि 90 रु साना हबो means first part रहला first part tan theta कोन हबो positive. You know tan theta means the slope of the tangent. Slope of a tangent, because the angle of inclination of a tangent is greater than 0. Slope of the tangent means you know in derivative dy by dx is greater than 0 for x belongs to on that interval a comma b. So if dy by dx is greater than 0 for x belongs to a to b, then that function must be an increasing. तेणु जो इंटरवल भितर dy by dx टा जदि पॉजिटिव होची से भितर फंक्शन टा कोन हबो इंक्रीजिंग हबो. नेक्स्ट, what is the condition for steadily decreasing? Condition for steadily decreasing. So for decreasing, what is the condition for decreasing function? You know the decreasing function. Decreasing function means if the value of x increases, then the value of f of x decreases. Extra body gale function of value jodi कम होथो, that is known as a decreasing or steadily decreasing function, and the graph of the decreasing function is like that. No, no. So suppose this point is x is equal to a point and this is x is equal to b point. Clearly the boundary point on that interval here x is equal to a and this is x is equal to b. अच्छा, a decreasing function graph रे हमें गोटे point नेबा a point रे गोटे tangent line draw कर पले. This is a tangent line. Okay, so this tangent line is the angle of inclination of the tangent here. कौन होता देखो okay, the angle of inclination of the tangent theta here
the angle of inclination of the tangent is must be obtuse angle. ना नहीं, the angle of inclination, the angle of inclination of tangent to the curve on interval a comma b must be obtuse, that is theta greater than 90 degree. If theta greater than 90 degree, then tan theta less than 0. So tan theta means slope of the tangent line on interval a comma b. But you know slope of the tangent means dy by dx. So dy by dx is less than 0 for x belongs to open interval a comma b. ना ए इंटरवल भितर तुम्हें कर्व प्रति जेकोसी गोटे पॉइंट जदि टेंजेंट लाइन ड्र करिया से टेंजेंट लाइन रो इंक्लिनेशन दा द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मस्ट बी ऑब्ट्यूज थीटा रा निश्चित रूप कौन हम 90 डिग्री टू बड़ हम जदि यार ग्राफडा भलार कर दउछ न देख ग्राफडा टिके भलार करछि सो क्लियरली दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन ए पॉइंट हमें टेंजेंट लाइन ड्र करिया एडा होची टेंजेंट लाइन दा ना नहीं अच्छा द कोऑर्डिनेट एक्सिस दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस here y o y dash and this is x o x dash. Here this theta must be what? Theta must be obtuse angle. Theta रा निश्चित रूप कौन होगा obtuse सेटा होची टेंजेंट लाइन दा तो pt is a tangent नहीं कि अच्छा सो थीटा रा इडी कौन होगा 90 रु बड़ होगा थीटा 90 माने tan थीटा कौन होगा लेस देन 0 tan थीटा मींस dy by dx टा कौन होची नेगेटिव होची तार तो डिक्रीजिंग फंक्शन रे dy by dx शुड बी नेगेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन रे dy by dx टा कौन होची पॉजिटिव ना काहेकि इंक्रीजिंग फंक्शन रे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दा एक्यूट होची हेले tan थीटा पॉजिटिव होला tan थीटा पॉजिटिव माने dy by dx टा पॉजिटिव होला किंतु डिक्रीजिंग फंक्शन रे थीटा कौन होची ऑब्ट्यूज होची थीटा ऑब्ट्यूज हेले tan थीटा कौन होची नेगेटिव होची tan थीटा माने स्लोप माने कौन dy by dx in the derivative तो dy by dx टा कौन होची नेगेटिव सो फॉर इंक्रीजिंग dy by dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर डिक्रीजिंग dy by dx लेस देन 0 तेणु जो इंटरवल भितर dy by dx टा पॉजिटिव होबो से भितर फंक्शन टा इंक्रीजिंग होबो जो एरिया भितर dy by dx टा नेगेटिव होबो से भितर फंक्शन टा डिक्रीजिंग होबो सो बाय हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हाउ कैन यू डिटरमाइन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग तेणु डेरिवेटिव यूज करी फंक्शन टा कोडी इंक्रीजिंग होबो कोडी डिक्रीजिंग होबो आमे केमदी आमे बाहर करिया देखिलो नेक्स्ट वी डिस्कस साइन ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो साइन ऑफ द पॉलिनोमियल मींस ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x रो को वैल्यू पाए गोटे पॉलिनोमियल पॉजिटिव होबो आ गोटे पॉलिनोमियल फंक्शन दा केतेबेले नेगेटिव होबो हाउ कैन यू डिटरमाइन देखो लेट p of x be a polynomial function in degree n be a polynomial in x polynomial in variable x in variable x of degree n okay suppose p of x can be factorized into n non-repeated linear factor into n non-repeated linear factors that is p of x is equal to
x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into x minus alpha 3 dot 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 x minus alpha n, x minus alpha n, where each coefficient of x in each factors is positive, where the coefficient of x in each factors is positive. So mo kon kali pile, let p of x be a polynomial function in variable x of degree n. Suppose p of x can be factorized, ये जो polynomial देइछि भला बुझे चेष्टा करो. ए polynomial तुम कौन कलो, factorization कलो. factorization कले n the factor आइला, all are linear factor, n non repeated linear factor. repeat माने x1 minus alpha रो जदी स्क्वायर था तबले एटा रिपीट हेता था. एडी मो कौन कली, n दा non repeated linear factor आइला. linear माने प्रत्येक फैक्टर रो डिग्री 1, that is known as a linear factor. जो एटा x स्क्वायर माइनस अल्फा था बोले एटा क्वाड्रिक फैक्टर हेता था. तमे जो पॉलिनोमियल देछि से पॉलिनोमियल कोन करियो, फैक्टराइजेशन करियो. सपोज देयर आर n नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आसिला एंड ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ x रो कोएफिशिएंट को सब जगह फैक्टर रो x रो कोएफिशिएंट को तमे पॉजिटिव कर दबो. जदी कोडी नेगेटिव थियो माने फर्स्ट तुम कोन करियो, पॉजिटिव करियो. सपोज वेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर्स इज पॉजिटिव, प्रत्येक फैक्टर रो x रो कोएफिशिएंट पॉजिटिव बा जदी नेगेटिव थियो माने तमे पॉजिटिव करियो. कोडी नेगेटिव ले माने माइनस टी कॉमन काढी पॉजिटिव करियो ना नहीं. अच्छा पॉजिटिव करला पर मन कर एठी सब जागा मोर x रो कोएफिशिएंट गुडी को पॉजिटिव अछि. तापर कोन करबो, नाउ equating each factors is 0, each factors are 0, so we get x is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 dot 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 alpha n. This is the root of the polynomial, where alpha 1 okay greater than alpha 2, alpha 1 greater than alpha 2 greater than alpha 3 greater than dot dot greater than alpha n. So which one is the greatest value? This one is alpha 1 is greatest, then alpha 2 is greatest, then alpha 3. सब जो alpha 1 दा बड़ो m जो स्टाइल अछि descending order रे रखाला. Okay, then these values plot in a number line. Then these values plotted in a number line, ना नहीं जो x रो जो वैल्यू आसिला से वैल्यू को कौन करियो तमे नंबर लाइन रे प्लॉट करियो. सो दिस इज द नंबर लाइन, here this is the minus infinite and this is the plus infinite. So which one is greater? Alpha 1 is greater, eta roibo alpha 1, then alpha 2, then alpha 3, then dot 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 alpha n, eta that roibo alpha 4 nagi m roibo. So this is equal to alpha 4, then alpha n roila. Okay, here if the factorization of the form, or here all the coefficient of x is positive and all are non-repeated linear factor, this is known as a rightmost region and divided into n sub-interval. These values plotted in a number line and divided into n plus 1 intervals. ए जो नंबर आइला से नंबर लाइन कौन करियो तमे, ए जो नंबर वैल्यू आगे जो आसिला ए वैल्यू जाकू तमे नंबर लाइन रे प्लॉट करियो. सान रु बड़ क्रमे सजै लिखिला परे n+1 रे सब इंटरवल आइला. काहेकि
अल्फा एन एनडा वैल्यू अच्छी माने n प्लस 1 सब इंटरवल हम एडा गोटे इंटरवल एडा गोटे इंटरवल एडा गोटे इंटरवल एडा गोटे इंटरवल इन n प्लस 1 सब इंटरवल हम here this part is known as the right most region kind right side अच्छी ना आपको हम कहते right most region then तापर right तापर एडा so the right most region is always positive right most region ला कौन करियो पॉजिटिव करियो देखो ए जो पॉलिनोमियल थिला भला बुझा चेष्टा करो पॉलिनोमियल ला कौन कलो तुम फैक्टराइजेशन कलो फैक्टराइजेशन रे कौन कलो ना नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहिला ऑल आर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहिला जदि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थिबो आ सब जगह x रो कोएफिशिएंट जदि पॉजिटिव थिबो द राइट मोस्ट रीजन ऑलवेज पॉजिटिव रिमेंबर दिस वन इज द राइट मोस्ट रीजन इज ऑलवेज पॉजिटिव दिस पार्ट इज नोन एज राइट मोस्ट रीजन दिस पार्ट इज राइट मोस्ट रीजन इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल बी कंपल्सरी नेगेटिव then it will be positive then it will be negative so it is alternate interval the right most region is positive then it will be alternative sign in alternate interval कौन बुझी पारलो पिले ना x रो जो वैल्यू आसिला ताको नंबर लाइन लिखिलो नंबर लाइन लिखला पर राइट मोस्ट रीजन ना प्लस हबो तापटा माइनस हबो तापटा प्लस हबो तापटा माइनस हबो दैट मींस p of x is positive here the value of p of x is positive remember this one carefully these are very important of the sign theory the value of p of x the value of p of x means polynomial is positive in the rightmost region and it will be positive and negative in alternative intervals starting from rightmost region starting from rightmost region कौन कहली ना p of x रो वैल्यूटा पॉजिटिव होबो तापरटा नेगेटिव होबो p of x is positive in the rightmost region टा पॉजिटिव होबो तापरटा it will be positive and negative in alternative intervals starting from rightmost region जदि rightmost region टा पॉजिटिव होबो तापर इंटरवल ला नेगेटिव होबो तापटा पॉजिटिव होबो तापटा नेगेटिव होबो तापटा पॉजिटिव होबो तापटा नेगेटिव एम जीवो ना नहीं सो तो तुम कौन कल ये कौटी पॉजिटिव हम p of x वैल्यू कौटी पॉजिटिव हम राइट मोस्ट रीजन रे पॉजिटिव हम तापटा नेगेटिव हम इन दिस वे सो इन पर्टिकुलर if p of x is a quadratic polynomial then how to solve the quadratic polynomial you know in the first year class in particular if p of x equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0 be a quadratic polynomial and its factorization form is a into x minus alpha into x minus beta where alpha and beta are the roots of the polynomial such that alpha less than beta then write the value of alpha and beta in a number line this is alpha and this is beta this is positive and this is minus negative na nahi if a is positive case 1 if a greater than 0 जदि a टा पॉजिटिव थियो एट दीरा फैक्टर अछि पिले x रो कोएफिशिएंट पॉजिटिव अछि सो द राइट मोस्ट रीजन इज पॉजिटिव मन रख क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रो फैक्टराइजेशन करला परे जदि a टा पॉजिटिव थिबो अल्फा बीटा तमरा आसिला पिले अल्फा बीटा को तमे नंबर लाइन लिखिलो नंबर लाइन लिखला परे जदि a टा पॉजिटिव थिबो राइट मोस्ट रीजन ला पॉजिटिव होबो तापटा कोन होबो नेगेटिव होबो तापटा पॉजिटिव होबो देयरफॉर ax स्क्वायर plus bx plus c
is positive for x belongs to minus infinite to alpha union beta to infinite. Very important पिले भला बुझा चेष्टा करो. And x square plus bx plus c is negative for x belongs to alpha to beta. मु कौन कहली ना गोटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रो वैल्यू केतेबेले पॉजिटिव होबो केतेबेले नेगेटिव होबो तमे ताकू फैक्टराइजेशन करियो. फैक्टराइजेशन कला पर एमदी फॉर्म लिखियो ना नहीं गोटे वैल्यू आसला अल्फा गोटे वैल्यू आसला बीटा अल्फा बीटा को तमे नंबर लाइन लिखियो. नंबर लाइन लिखला पर जदी ए रो वैल्यू पॉजिटिव अछि राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव तापटा नेगेटिव तापटा पॉजिटिव होबो. तो ax square plus bx plus c is positive if x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity, and it will be negative for x belongs to alpha to beta. Suppose if a less than 0 तो कौन होची case 2 if a less than 0 then what happen case 2 if a less than 0 means negative जब a रा नेगेटिव अछि माने एटी रीजन ना कोन होला अल्फा बीटा नंबर लाइन लिखिलो. This is plus infinite and this is minus infinite. Here the rightmost region is it negative. कहीं ना a रा नेगेटिव अछि पिले a रा नेगेटिव थियो माने x स्क्वायर हाईएस्ट बार कोएफिशिएंट नेगेटिव अछि तो एडा अब तुम नेगेटिव तापटा पॉजिटिव तापटा कोन हबो नेगेटिव जदी एडा नेगेटिव अछि. सो x स्क्वायर plus bx plus c is positive if x belongs to alpha to beta, and it will be negative and negative for x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinite. बुझी पालो. तेणु क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम सॉल्यूशन जानते फास्ट ईयर क्लास रे केमती करा होची एबे एडा को मन पकाला. गोटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थिबो तार डिग्रीटा जेते रहउची रहउ से पॉलिनोमियल रो साइन आमे केमती डिटरमाइन करियो. प्रथमे ताको फैक्टराइजेशन करियो. फैक्टराइजेशन कले जदी नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर होची ना नहीं सब जगह x रो कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करू. पॉजिटिव कला परे तम राइट मोस्ट रीजन ना पॉजिटिव होबो तापटा नेगेटिव तापटा पॉजिटिव इन द अल्टरनेट आसियो. नाइ जदी सब जगह पॉजिटिव कला परे माइनस रह जाउची बेले राइट मोस्ट रीजन नेगेटिव हो तापटा पॉजिटिव तापटा नेगेटिव हो. जदी नॉन रिपीटेड होइरी रिपीटेड होइला रिपीटेड होइला माने जो फैक्टर रो पावरटा स्क्वायर अछि फोर्थ अछि इवन पावर अछि माने स्टार लेफ्ट साइड रे सेम रहइबो राइट साइड रे सेम रहइबो ना नहीं सेटा पर कथा सेटा आगु हम डिस्कशन करिया. जदी रिपीटेड पळाउची एबे नॉन रिपीटेड पई कोआला बा रिपीटेड हेले मध्ये जदी इवन पावर रहियो माने ता राइट साइड रे पॉजिटिव लेफ्ट साइड रे भी पॉजिटिव हो सेडी चेंज होबोनी पिले. जदी पावरटा रिपीटेड थिबो पावरटा स्क्वायर थिबो बा फोर्थ थिबो इवन पावर थिबो माने तार लेफ्ट साइड रे राइट साइड रे प्लस प्लस रहिबो जदी सब जगह आगर प्लस रहउची ना नहीं जदी माइनस सब जति रहउची माने सेडी माइनस होबो एम दी होबो पिले. सो एम दी स्टाइल रे तमे गोटे पॉलिनोमियल रो साइन दा तमे कोन करियो डिटरमाइन करियो. So next this is the very important how to find intervals for increasing and decreasing function. Play by help of a derivative how to determine where the function is increasing and decreasing. देखो step 1 कौन करियो write the given equation y is equal to f of x and find dy by dx. जो इक्वेशन ना थिबो तार फर्स्ट डेरिवेटिव करियो फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कौन करियो dy by dx टा को जीरो करियो dy by dx टा को जीरो करियो एंड सॉल्व इट. तेनो जो पॉइंट dy by dx टा जीरो होची दैट पॉइंट इज नोन एज अ टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट माने कोन ना टर्निंग पॉइंट एट दैट पॉइंट द कर्व चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजेस टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजेस टू इंक्रीजेस. जो पॉइंट रे ग्राफ टा चेंज होतो इंक्रीजेस टू डिक्रीजेस or decreases to increases that is known as a turning point, and this point is also known as a extreme point. Extreme point माने जो point डेरिवेटिव जीरो हबो बा जो point डेरिवेटिव इनफिनिट हबो डज नॉट एग्जिस्ट हबो that point is known as a turning point. पले हमको प्रथमे टर्निंग पॉइंट बाहर करिया. टर्निंग पॉइंट रे dy by dx रो मूल्यला कोन हबो जीरो हबो. तेनो dy by dx जो आस्तिबो तमे ताको इक्वल टू जीरो करियो सॉल्व करी x रो वैल्यूला बाहर करियो. वैल्यूला बाहर कला परे सपोज x इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा आसला
वेर अल्फा ग्रेटर देन बीटा सॉल्व कलाडो दीटा वैल्यू आसी पारे कि तीनटा वैल्यू आसी पारे चारटा वैल्यू आसी पारे इक्वेशन देखि आमे करबा एंड प्लॉटेड अल्फा एंड बीटा इन ए नंबर लाइन तब अल्फा बीटा को कौन करियो नंबर लाइन रे डिटरमाइन करियो जिंदी पूर्व मु कहली नंबर लाइन जिंदी करियो ना नहीं सानरो बड़ क्रमे नंबर लाइन रे लिखा हबो एंड डिटरमाइन इट्स साइन एंड डिटरमाइन इट्स साइन यूजिंग साइन थ्योरी साइन थ्योरी टा यूज करी बा तमे तार साइन टा डिटरमाइन करियो तुम कहली गोटे पॉलिनोमियल कोडी पॉजिटिव होबो कोडी नेगेटिव होबो जो पॉलिनोमियल थिबो ताको फैक्टराइजेशन करियो फैक्टराइजेशन कला परे तुम कोन करियो ताको ऑल दी एक्स रो कोएफिशिएंट को सब जगह पॉजिटिव करियो पॉजिटिव कला परे राइट मोस्ट रीजन ना कोन होबो पॉजिटिव होबो तारपरटा नेगेटिव होबो तारपरटा पॉजिटिव दिस द साइन थ्योरी ए अनुसार तमे इंटरवल साइन दा डिटरमाइन करिवो एंड डिटरमाइन इट्स साइन दा डिटरमाइन कला पर जो इंटरवल भितर dy by dx ता पॉजिटिव होची फॉर इंक्रीजिंग राइट द इंटरवल्स बाय dy by dx ग्रेटर देन 0 तो जो इंटरवल भितर dy by dx ता पॉजिटिव होबो से भितर फंक्शन इंक्रीजिंग होबो एंड फॉर डिक्रीजिंग राइट द इंटरवल्स बाय dy by dx लेस देन 0 जो इंटरवल भितर dy by dx ता नेगेटिव थियो से भितर फंक्शन डिक्रीजिंग होबो जो इंटरवल भितर dy by dx ता पॉजिटिव थियो से भितर फंक्शन इंक्रीजिंग हो मेन हैला तमरो जो फैक्टराइजेशन कला पर इक्वल टू 0 करी x रो वैल्यू बाहर करियो अल्फा बीटा रूट टा काढियो रूट टा बाहर कला पर तमे नंबर लाइन लिखियो नंबर लाइन लिखला पर तमे तार साइन टा डिटरमाइन करियो साइन टा केमदि डिटरमाइन करा हबो कहला ना नहीं साइन टा डिटरमाइन कला पर जो इंटरवल भितर dy by dx ता पॉजिटिव होची सेति भितर फंक्शन इंक्रीजिंग होबो आ जो नेगेटिव होबो सेति भितर फंक्शन दा डिक्रीजिंग फॉर एग्जांपल वन गोटे एग्जांपल देखो तमे सो वन क्वेश्चन फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन fx equal to x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is steadily increasing and decreasing ना नहीं कोड भितर steadily increasing होबो कोड भितर decreasing होबो clearly this is a polynomial function and you know the domain of the polynomial function is a set of real number सबले जो फंक्शन दा डिफाइन कराइथियो ना नहीं जो फंक्शन दा देथिबो से फंक्शन दा तार डोमेन पाखरे सबले नबा डोमेन दा नेबा डोमेन रहेगा हमें बाहर करिया पड़ियो सब इंटरवल where the function is increasing and decreasing clearly it is a polynomial function its domain is R set of real number तो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी भीतर फंक्शन डिफाइन कराइछि माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ए इंटरवल भीतर कोडी इंक्रीजिंग होबो सब इंटरवल बाहर करिया को डिक्रीजिंग बाहर करिया प्रथम काम कोन y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन लिखिया ताको डेरिवेटिव करिया इक्वल टू 0 करिया ना नहीं प्रथमे टर्निंग पॉइंट बाहर करिया टर्निंग पॉइंट इज आल्सो नोन एज क्रिटिकल पॉइंट बाहर कला पर ताको नंबर लाइन लिखिया नंबर लाइन तार साइन दा डिटरमाइन करिया साइन दा वेरी इंपोर्टेंट देखो पहले मु कोन करछि लेट y इज इक्वल दिस वन लेट y इज इक्वल टू 2x क्यूब minus 3x square minus 36x plus 7 so dy by dx is equal to 6x square minus 6x minus 36 आइला तो आपको फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखो जे कोन पॉलिनोमियल थिबो तमे ताको फैक्टराइजेशन फॉर्म लिखिया मु कहूची साइन दा डिटरमाइन करिया पूर्व तो 6 टा कॉमन काले रे केतो रहला x square minus x square minus x minus 6 तो याको फैक्टराइजेशन कर दियो आपको फैक्टराइजेशन करले x square minus x minus 36 is equal to तो यार फैक्टराइजेशन करले कोन होबो दिस इज इक्वल टू कोन लिखिया हमें x square plus 2x minus 3x minus 6 कर देली नहीं ओके सो और तुम एमती भी लिखि पार 0 कर दियो सपोज एटा को 0 करिया एमती काई करिया अच्छा एती आसला पुट dy by dx is equal to 0 नहीं कि तो याको 0 कले कौन होची दैट इंप्लाइज 6 into x square minus x minus 6 is equal to 0 तो x square minus x minus 6 equal to 0 सॉल्व कर दियो x square plus 2x minus 3x आइला तमर dy by dx बाहर करला परे तमे dy by dx टा को 0 करियो ना नहीं
सो ये केते ला मल्टीप्लिकेशन कलाडू -x ऐड कर मल्टीप्लिकेशन कलाडू -6x² ऐड कलाडू -x आइबो +2x -3x -6 नेली दैट इंप्लाइज x कॉमन करले x + 2 एंड -3 कॉमन करले x + 2 आइला सो दिस इज इक्वल टू हां कोन आसी सो x + 2 दैट इंप्लाइज एटा केते असला x + 2 into x - 3 is equal to 0 that implies x is equal to -2 टा असला और x is equal to 3 असला so एति असला therefore dy by dx is equal to therefore dy by dx is equal to कोन तो 6 into आको फैक्टराइजेशन करले कोन होची ना दिस इज x + 2 into x - 3 एति असला अच्छा तुम वैल्यू आसला -2 3 आपको कौन करियो नंबर लाइन लिखियो तो आंसर कौन होला आपको नंबर लाइन लिखि दियो तो नंबर लाइन कौन लिखियो दिस इज -2 उटा आसला 3 उटा आसला सानो संख्याटा फास्ट लिखियो -2 तापर 3 एडा होची -इनफिनिट एडा होची +इनफिनिट पिले सो यार साइन डिटरमाइन करिया दरकार कार dy by dx इक्वल कोन रहला 6x² - 6x - 36 तो याको फैक्टराइजेशन करले एति रहला तुम कौन कहली ए पॉलिनोमियल रे दीरा फैक्टर अच्छी नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर अच्छी पुनी एक्स रो कोएफिशिएंट पॉजिटिव अच्छी एडी पॉजिटिव अच्छी एडी पॉजिटिव अच्छी सो द राइट मोस्ट रीजन इज पॉजिटिव तुम गोटे पॉलिनोमियल लागू फैक्टराइजेशन कला परे जदी नॉन रिपीटेड लिनियर फैक्टर होची आ सब जगह एक्स रो कोएफिशिएंट जदी पॉजिटिव अच्छी राइट मोस्ट रीजन ऑलवेज पॉजिटिव हबो एडा पॉजिटिव ला परे तार अल्टरनेटिव कोन हबो अल्टरनेटिव इंटरवल ना नेगेटिव हबो right most reason positive and it will be positive and negative in alternate sign starting from right most reason एटा positive ला पर नेगेटिव हबो तापटा कोन हबो पॉजिटिव हबो तो dy by dx टा कोडी पॉजिटिव हबो 3 to infinity भितरे आ -इनफिनिटी टू -2 भितरे dy by dx टा को नेगेटिव होची -2 to 3 भितरे तार एति भितरे डिक्रीजिंग होची एति भितरे इंक्रीजिंग एति भितरे इंक्रीजिंग therefore y is increasing therefore y is strictly increasing for x belongs to -infinity to -2 ओपन ब्रैकेट दबो कई -2 -3 आर टर्निंग पॉइंट ए पॉइंट रे फंक्शन टा कोन करछि टर्न करछि इंक्रीजेस टू डिक्रीजेस और डिक्रीजेस टू इंक्रीजेस यूनियन 3 to infinite ना नहीं एंड डिक्रीजिंग x belongs to -2 to 3 तो बुझल पिले बा तमे एडा को फैक्टराइजेशन न करिगिनी मते तमे डायरेक्ट करि परियो एडी x² कोएफिशिएंट कोन अछि 6 अछि हाईएस्ट बार कोएफिशिएंट पॉजिटिव अछि तो राइट मोस्ट रीजन दा पॉजिटिव जदी क्वाड्रेटिक फॉर्म रहला ना नहीं एडी हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट जदी प्लस अछि राइट मोस्ट रीजन दा पॉजिटिव तापटा नेगेटिव तापटा पॉजिटिव सो एमदी कहि परियो बा हम फैक्टराइजेशन करिगिनी मते तो मु जेंदी कहितली ऑल द फैक्टर आर सब जाग फैक्टर एक्स रो कोएफिशिएंट पॉजिटिव अछि तेन राइट मोस्ट रीजन दा पॉजिटिव हबो तापटा नेगेटिव हबो तापटा पॉजिटिव हबो तेन जो एति भितरे dy by dx टा पॉजिटिव दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हला एति भितरे फंक्शन इंक्रीजिंग एति भितरे हमें डिक्रीजिंग सो इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस सम अनदर मोर प्रॉब्लम थैंक यू